impact in Assam in general and Northeast in particular. So there's a lot of noise behind it. Not from my side. Can I request you to turn up your audio? Yeah, if you can just turn up your, yeah, it's gone. So thank you so much. So we're trying to bring all the dots together. People are working in silos and probably not being able to create the impact that probably when we work together and in collaboration can create. Today's session in particular is very important to us, and we have been doing it for a couple of years during the COVID. One of the ideas that occurred to us is that it is good to do the physical action of rescuing animal, rehabilitating them, taking them to the doctor and getting them okay, adopting, asking people to adopt. But at another level, we also realized that awareness creation is an important part of that. And this is something that we started in July 2019 during the COVID. And since then, we have been able to continue it. So on every Friday, we have somebody from the Northeast speaking on animal welfare. And I'm super happy to receive your quick confirmations and have you on board. Our two speakers today, Ankita Dev and Chandani, they both work for the same organization, and they're extremely passionate, being young and extremely passionate about what they do. While I was just speaking over to them, if there is any particular incident that they think that triggered the change and motivated them to come and work in the animal welfare, which is not so common in general. And both of them said that they're just passionate about it. And probably one doesn't need to have a particular trigger to be so passionate. The format of today's presentation is that I will invite Chandani first to take us through her journey of being in the animal welfare, tell us a little bit about the organization, about yourselves, and what your experiences has been. Both of you get 15 minutes. So I won't take much of your time introducing it, and would love to hear from your own, from the horse's mouth about your experiences, about yourself, about your organizations. And we hope that our audience will learn something new and will be able to connect with you in whichever city they are. So if we're in Tezpur, so they will probably get connected in Tezpur. If we're in Guwahati, they get connected otherwise too. So welcome to the Anajari platform, and the platform is now yours. Thank you so much, Ankita. Thank you so much, Chandani. Chandani first. So I would like to take this forward in Hindi. Is it fine? Absolutely. Any language. एकदम खूब अच्छी तरह. तो मेरा नाम चांदनी शाह है. मैं बेसिकली नौगांव से हूँ, बट मैं पिछले 3 साल से तेजपुर में हूँ. मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ यहाँ से गौरंग कॉलेज से. उसके अलावा आई एम वर्किंग इन द अनसिविलाइज्ड इंडियन, जो एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं, बाकी और भी इनिशिएटिव्स है हम लोग के, लाइक खून, हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं. द वॉइस एनिमल वेलफेयर, जिसमें हम लोग बेसिकली एनिमल्स के लिए काम करते हैं. ऐसे इसके अलावा अनंत विद्या बोल के हम लोग का एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे हम लोग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन देते हैं. इसके अलावा भी हम लोग के और भी इनिशिएटिव्स है. फिलहाल मैं आती हूँ द वॉइस एनिमल वेलफेयर पे. तो बेसिकली यूसीआई ज्वाइन किए हुए मेरे को 2 साल हो चुके हैं. द वॉइस एनिमल वेलफेयर, हम लोग बेसिकली यहाँ से एनिमल्स के लिए काम करते हैं. लाइक वी डू रेस्क्यू, फॉस्चर, फीडिंग डेली बेसिस पे. और इसके अलावा भी लाइक हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे एनजीओस के साथ मिलके. हम लोग सिर्फ तेजपुर में ही नहीं, और भी दूसरे जगह से हम लोग रेस्क्यू करने का कोशिश करते हैं, एनिमल्स उनको फॉस्टर करने का कोशिश करते हैं. हम लोग का यहाँ पे आसाम में तेजपुर, ढेकियाजुली में ब्रांच है. उसके अलावा रांची में भी हम लोग का द वॉइस एनिमल वेलफेयर का यूसीआई फाउंडेशन से ब्रांच है. आप बताएं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई. और जी, मेरी जर्नी आज से 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैंने यूसीआई फाउंडेशन ज्वाइन किया था. हम लोग के फाउंडर है राहुल पांडे जी.
उनका ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ये स्टार्ट किया था। तो आज से 2 साल पहले जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो बेसिकली ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं था कि मुझे सोशल वर्किंग ही करना है या एनिमल्स के लिए ही काम करना है। मुझे पहले से अच्छा लगता था ये चीजें, जब भी टीवीज वगैरह पे देखती थी या फिर न्यूज वगैरह में देखती थी कि कोई किसी का मदद कर रहा है, एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस का हो, मुझे अच्छा लगता था वो चीज। तो जब मैं तेजपुर आई, मुझे पता चला दैट यूसीआई फाउंडेशन बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल्फ फाइनेंस्ड है और अपने में ही काम कर रहा है यहाँ पे। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, राहुल पांडे जी से, एंड देन उन्होंने बुलाया, आई स्टार्टेड वर्किंग विद देम। तो मेरा वैसे करके एक्चुअली मैं जर्नी स्टार्टेड उनके साथ ही, आज से 2 साल पहले मेरा ये जर्नी स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। देन फिर एनिमल्स के लिए एक्चुअली मतलब वो था, एक लगाव था, बट मैं इस हद तक कर सकती हूँ कि रेस्क्यूज भी आई कैन डू एंड ऑल दिस, वो मुझे पता नहीं था। बट या स्लोली जब मैंने काम करना शुरू किया था वॉइस में, तो बहुत लगाव होने लगा। तो वैसे करके आई स्टार्टेड लाइक वर्किंग फॉर एनिमल्स। पिछले 2 सालों में आपने क्या देखा, क्या चीजें हैं जो आपको, आपके अनुभव में ऐसा लगता है कि सभी को जानना चाहिए, सभी को उसी तरह का करना चाहिए या उससे बेहतर करना चाहिए? ऐसी कौन सी आपके अनुभव है, एक्सपीरियंसेस है जो हम आप ऑडियंसेस को बताना चाहेंगे, उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? जी, वैसा बोलने से मेरा जो पहला रेस्क्यू था वो काफी लाइक मेरे लिए आज भी वो चीज मुझे काफी इंस्पायर करता है, काफी मोटिवेट करता है आज भी लाइक इस फील्ड में काम करने के लिए। तो आई वुड लाइक टू शेयर द इंसिडेंट लिटिल बिट। जो मेरा पहला रेस्क्यू था आज से 1 साल पहले, जब वॉइस स्टार्ट हुआ था तब था मेरा ये रेस्क्यू। एक कुत्ता था जो एक्चुअली 4-5 दिन पहले जब हम लोग को इन्फॉर्म किया गया था इस कुत्ते के बारे में, दैट द डॉग इज सफरिंग और समथिंग लाइक दैट, उससे 4-5 दिन पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट तेजपुर में हुआ था, थोड़ा रिमोट एरिया है वो तेजपुर का। तो वो एक्सीडेंट होने के लाइक अराउंड जो सराउंडिंग के लोग थे वो लोग ज्यादा अवेयर नहीं थे अबाउट एनीथिंग लाइक सोशली ऐसा कुछ काम होता है वगैरह, ऐसा कुछ में शायद वो लोग अवेयर नहीं थे, पता नहीं जो भी हो। तो वैसा कुछ था। तो उसके बाद हम लोग को 4-5 दिन बाद एक कॉल आया कि ऐसा एक कुत्ता है, वो पड़ा हुआ है डॉग, आप लोग आके अगर कुछ कर सकते हो तो देख लीजिए थोड़ा। हम लोग गए वहां पे, जाने के बाद उसका एक पैर पूरा खराब हो चुका था। लाइक ऑलरेडी 4-5 दिन हुआ था, ब्लड्स वगैरह मतलब निकलना भी बंद हो गया था, उसका जो स्किन जो है वो पूरा निकल चुका था एंड वो लिटरली गलना चालू हो गया था, यू कैन से। तो फिर हम लोग उसको लेके गए डॉक्टर के पास। तो सब बोल रहे थे वहां के लोग भी, इवन डॉक्टर से दैट वो बचेगा नहीं क्योंकि उसका जो कंडीशन था। तो फिर हम लोग लेके गए, डॉक्टर ने बोला फिर भी आप लोग कोशिश करके देखो अगर करना चाहते हो तो। हम लोगों ने कोशिश किया। फिर हम लोग को लाइक फॉस्टर करने का एक जो है हम लोग का अभी फ्री शेल्टर हूँ हम लोग के पास नहीं है। तो फिर भी हम लोगों ने एक जगह ढूंढा, ढूंढ के उस डॉग को रखा वहां पे कि चलो देखते हैं कि फॉस्टर करते हैं, मेडिसिन वगैरह देते हैं, वो ठीक हो पाता है या नहीं। तो फिर हम लोग वी स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट। डॉक्टर आते थे हमेशा, उसका चेकअप वगैरह करके हम लोग को मेडिसिन वगैरह देके भेजा। हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया उसका ट्रीटमेंट। तो फिर धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट करते करते हम लोग को लाइक काफी निगेटिव वाइब्स ही था हम लोग को कि वो बचेगा नहीं। बट पता नहीं बाय गॉड ग्रेस या क्या हुआ, वो बच गया। एंड इवन उसका वो जो लेग था वो काफी हील हो चुका है, वो अभी चल नहीं पाता है उस लेग के थ्रू से, वो अपना 3 उससे ही चलता है। बट स्टिल वो अभी ठीक है। अभी वो वैसे ही है, वहां पे है, वो उस जगह पे ही है। खाना वाना हम लोग जाते हैं उसको फीडिंग सेशंस वगैरह के लिए, तो हम रेगुलर बेसिस पे उसको खाना वगैरह देते हैं। वो वैसे ही रहता है अभी। अभी वो ठीक है, मतलब उसको बचा लिया हम लोगों ने। तो दैट वाज माय फर्स्ट रेस्क्यू, जिससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होती हूँ क्योंकि उस जिस स्टेज में वो था, जिस स्टेज में मैंने उसको देखा था, उस स्टेज से उसको निकाल लाना और उसको मतलब अभी वो ठीक है, वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। आपके ऐसे कौन से अनुभव रहे हैं? बहुत सारे लोग नहीं है, अगर हम देखें बहुत सारे लोग नहीं है जो इस तरह का काम करते हैं। तो जब आप इस तरह का काम करते हैं, आप समुदाय में जाते हैं, कम्युनिटी में लोग जाते हैं, जनरल सोसाइटी का रिएक्शन क्या होता है? और आप तेजपुर में काम कर रही हैं, तो क्या लोग बहुत ही प्रोएक्टिव है कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या लोग थोड़े अलग तरीके से देखते हैं? इन जनरल जी, परसेप्शंस बहुत ही अलग है एनिमल वेलफेयर में जो लोग काम करते हैं उनको देखने का। तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि हमें बताइए कि वो कैसा है। इस इंसिडेंट से ही रिलेटेड मैं एक पहले निगेटिव एक चीज बताती हूँ। निगेटिव चीज ये थी कि हम लोग ने जब गए वो स्पॉट पे उसको रेस्क्यू करने के लिए, वो स्पॉट ऐसा था कि वहां पे हम लोग को एक कपड़ा चाहिए था उसको उठाने के लिए, हम लोग के पास था नहीं। तो हम लोगों ने लाइक नेबर से मांगा कि आप लोग कुछ कपड़ा दे सकते हो, जो भी हो। तो वो लोग कोई रेडी नहीं था वो कपड़ा देने के लिए, कि नहीं है कपड़ा ये वो। फिर मतलब समहाउ भी मैनेज के कपड़ा मिले। तो ये चीज एक निगेटिविटी में मतलब ले जाता है हम लोग को कभी रेस्क्यू करने के टाइम पे, कि लोग काफी निगेटिव चीजें बोलते हैं, ये तो कुत्ता है मर जाएगा क्या होगा छोड़ दीजिए।
या फिर बंद है ये तो गल गया है, आप लोग कैसे उठा के ले जाएंगे, या फिर एक होता है कि लाइक मतलब निगेटिव वाइब्स आते हैं। बट उसके अलावा भी एक पॉजिटिव चीजें होता है, जैसे हम लोग फीडिंग करवा रहे हैं या रेस्क्यू कर रहे हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें भी आती है, लाइक आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ भी हेल्प, लाइक ऐसा अगर है कि कोई कपड़ा देना नहीं चाहता है तो वैसे भी लोग हैं हम लोग जब रेस्क्यू करने जाते हैं तो कि वो खुद से अपना घर नया कपड़ा फिर नया मस्क्यूटो नेट की कर रहे हैं, तो वहां पे अपना मस्क्यूटो नेट ही डोनेट कर दिया। वैसा भी है, पॉजिटिविटी भी है, निगेटिविटी भी है, तो ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रॉब्ली मैं बाद में पूछना चाहूंगा विद रिगार्डिंग द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जी जी। लेकिन उसके पहले अंकिता के पास आते हैं। अंकिता, अपने को अपना परिचय दीजिए, इंग्लिश हिंदी असमी जो भी उसको बेहतर लगे, और ये बताइए कि आप इतने पैशनेट कैसे बनी इस फील्ड में, कैसा आपका अनुभव रहा, आपके सोशल सर्कल में कैसा एक्सेप्टेंस इस बात का। Hi, I will also continue in Hindi only. ठीक है। So पहले पहले मैं रेस्क्यू करती थी, बट वो सारा मेरा पर्सनल रेस्क्यू होता था, मैं अकेले घर पे ही करती थी। तो रेस्क्यू करके मैं उसको अडॉप्ट कर लेती थी, तो मुझे उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब इतने ह्यूज अमाउंट या ह्यूज सर्कल में भी मैं रेस्क्यू कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं एक नहीं एक साथ काफी सारे एनिमल्स को मैं रेस्क्यू कर सकती हूँ। तो एक्चुअली स्टडीज के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया था प्रतीक्षा हॉस्पिटल में गुवाहाटी में। तो वहाँ पे एज ए ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर में काम कर रही थी। फिर वहाँ पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रेरणा गोगोई। शी रिसेंट वो उन्होंने भी मतलब न्यूली ज्वाइन किया था। फिर मैं वहाँ पे वहाँ के एरियाज में भी हॉस्पिटल के चारों तरफ जो डॉग्स थे मैं उनको फीडिंग करती थी, फिर उनके साथ खेलती थी। फिर इससे क्या होता था, आसपास के लोगों को पता था कि उन डॉग्स को देखने के लिए कोई है, तो वो लोग जो है उन डॉग्स को कुछ करते नहीं थे। फिर जैसे कि कुछ भी होता था तो वो लोग भी मुझे आके पूछते थे कि डॉग्स को ये हुआ है, क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। फिर ये सब चीज जब वो डॉक्टर प्रेरणा गोगोई ने आके देखा कि आई वॉज सो मच इन्वॉल्व विद दिस थिंग्स, तो उन्होंने कहा कि मेरा एक फाउंडेशन है, तो आप ज्वाइन करना चाहोगे क्या। मैंने पूछा किस बारे में है, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली हम लोग का जो फाउंडेशन है पप्पी रेस्क्यू क्रू फाउंडेशन PRCF, ये मेनली काम करता है लोगों को एजुकेट करने में, जिस जो जो अभी मेन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कि लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक डॉग को अगर कुछ हो जाए तो क्या करना है, या फिर अगर कोई दूसरा कर भी रहा है तो उसको भी वो लोग डीमोटिवेट करते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ पे ना हो, इसके लिए मेनली PRCF काम करता है। तो उन्होंने मुझे वो इंट्रोड्यूस कराया, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पसंद था। फिर काफी सारे स्कूल्स में हमने प्रोग्राम किया, इवेंट्स किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कोविड आ गया था। तो जब कोविड आया उस वक्त ऐसा था कि हम लोग तो जो काम हम लोग कर रहे थे लोगों को अवेयरनेस फैलाने का, वो काम हम लोग का बंद हो चुका था क्योंकि हम लोग कहीं पे जा नहीं सकते थे। लेकिन जैसे कि मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, तो मैं तो बाहर जाती ही थी, लेकिन जो हमारे बाकी वॉलेंटियर्स थे उन लोग को अलाउ नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि रेस्क्यू केसेस आने इतने ज्यादा स्टार्ट हो गए थे कि हम लोग रोक नहीं पाए। कभी ये केस कभी वो केस, हम लोग और कितना दूसरों को मतलब शिफ्ट करते रहेंगे। तो उस वक्त ऐसा था कि कोविड के टाइम पे हमने रेस्क्यू केसेस उठाने स्टार्ट कर दिए थे, जबकि हम लोग का मोटो सिर्फ था लोगों को अवेयरनेस फैलाने का, क्योंकि गुवाहाटी में काफी सारे NGOs है जो रेस्क्यू करते हैं, लेकिन लोगों को अवेयर करने का कोई नहीं था। तो ये काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन फिर कोविड के टाइम पे हमें वो छोड़ के नहीं, साइड पे रख के हमें ये करना पड़ा। तो जो डॉक्टर प्रेरणा गोगोई है, शी इज द फाउंडर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, एंड को फाउंडर भी है हमारे डॉक्टर मानसी। सो दे बोथ आर डॉक्टर्स, ह्यूमन डॉक्टर्स, बट दे आर पैशनेट अबाउट एनिमल्स, सो दे स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो PRCF जो है ये ऑल ओवर इंडिया में है, इट्स अ नेशनल NPO। ये दिल्ली में है, मुंबई में, सिक्किम एंड गुवाहाटी। तो 4 चैप्टर्स है टोटल। सो
एवरी सिटीज में जितने भी चैप्टर्स है सब में पहले अवेयरनेस का ही काम था, तो अभी अवेयरनेस के साथ साथ रेस्क्यू केसेस भी स्टार्ट हो गया। तो जो गुवाहाटी चैप्टर है वो मैं लीड कर रही हूँ, आई एम द लीडर ऑफ गुवाहाटी चैप्टर। और उस टाइम अगस्त के महीने में जब कोविड था तब हमने फर्स्ट रेस्क्यू केस लिया था, और वो भी हमारे हॉस्पिटल के ठीक सामने था। फिर वही जैसे चांदनी ने कहा कि कोई डीमोटिवेट करता है, लेकिन कोई ऐसा भी होता है कि सब कुछ देने को तैयार है उस डॉग के लिए। तो जैसे हमने पहले रेस्क्यू किया था, काफी लोग आए थे कि उसको एक्चुअली कैनाइन डिस्टेम्पर हुआ था, सीडी, ड्यू टू वायरल। तो काफी लोग थे कि उसको मत छुओ वगैरह वगैरह, लेकिन फिर जब हम लोग ने उठा के उसको रखा, फिर जो हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने अपना पुराना शर्ट, सिक्योरिटी उनका जो यूनिफॉर्म था वो लाके दिया कि आप इससे उसको ढक दो, उसको ठंड लग जाएगा वगैरह। तो एक सिक्योरिटी गार्ड जब अपना शर्ट लाके दे सकता है तो यू कैन इमेजिन कि उसको कितना पसंद होगा वो डॉग। तो ऐसा भी है कि लोग हेल्प भी करना चाहते हैं, तो हमने वहीं पे उसको फोस्टर किया हॉस्पिटल में ही, ह्यूमन हॉस्पिटल में हमने डॉग को फोस्टर किया एक्चुअली। फिर उसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ था, लेकिन जबकि वो कैनाइन डिस्टेम्पर था और वो लास्ट स्टेज था तो वो बचा नहीं। तो आवर फर्स्ट केस वाज लाइक वो ही डाइड एक्चुअली। तो जब वो मर गया, लेकिन उससे हम लोग को लेसन मिला था कि एक्चुअली वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमने क्या किया, उस हॉस्पिटल के, हम प्रतीक्षा हॉस्पिटल के चारों तरफ जितने भी डॉग्स थे हमने उनको सबको वैक्सीनेट कर दिया। तो उस एक डॉग के मरने की वजह से बाकी सबको हमने वैक्सीनेट कर दिया था। तो दैट वाज आवर फर्स्ट वैक्सीनेशन ड्राइव। तो इस तरह हमने स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे हमने काफी सारे केसेस उठाए, लाइक टीवीटीएन वगैरह वगैरह। फिर उस दिन से अब तक हम लोग का रेस्क्यू केसेस स्टार्ट चालू है। तो जैसे कि चांदनी ने भी बताया कि हम लोग दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम करते हैं, तो हम लोग भी पीआरसीएफ पर्पस फाउंडेशन के साथ भी मिलके रेस्क्यू करते हैं, मिलके एबंडन केसेस को उठा के पोस्टर करते हैं। तो इसी तरह हम लोग अभी चल रहे हैं। तो अभी वही मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे रास्ते से किसी को उठा के देन उसको सेलाइन देना, मैंने ये सब कभी नहीं किया था। मैंने जस्ट छोटे मोटे रेस्क्यूज किए थे, लाइक उन जो भी मेल न्यूट्रिशन है उनको घर पे लाके खाना देती थी। जब वो फुल हट्टा कट्टा हो जाता था तो मैं उसको घर पे रखती थी। लेकिन इस तरीके का लाइक लाके उसको सेलाइन वगैरह देना, इंजेक्शन देना मैंने कभी नहीं देखा था। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली। तो तब से लेकर अब तक तो लाइक मेरे घर पे सब कुछ हो जाता है। मैं अपने घर पे पोस्टर करती हूँ, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है बाहर कहीं पे एडमिशन में रखना, प्राइवेट किसी क्लिनिक पे। तो अभी ऐसा है कि माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव, तो मेरी फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है। तो मेरे पीछे भी वैसे ही जगह बना दिया है जहाँ पे मैं रेस्क्यू डॉग्स को लाके पोस्टर करती हूँ, उनका ट्रीटमेंट होता है हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फिर हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं। आप तो नर्स भी हो गई अंकिता एनिमल्स के लिए। दैट्स या गुड, वेरी कमेंडेबल। आप दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, आप दोनों स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों अपने अपने कैरियर की तरफ के लिए कोचिंग्स कर रहे हैं, आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। इन सबों के बीच एनिमल रेस्क्यू के लिए वक्त निकालना, जो कि एक टाइम टेकिंग इनिशिएटिव है। अवेयरनेस एक लेवल, अलग लेवल पे होता है, जहां पे हम जाते हैं 1 घंटे के लिए बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है नहीं है। अवेयरनेस से एक्शन में जंप करना, इन दोनों के बीच का जो अनुभव है, उसके साथ ही जो आप पढ़ाई कर रही है अपने कैरियर कैरियर बनाने के लिए, कैसे कैसे मैनेज करती है आप लोग? आपने अंकिता बताया आपका आपका फैमिली बहुत सपोर्टिव है, शायद सबके साथ ऐसा नहीं हो। तो इन दोनों अनुभवों के बीच क्या क्या अनुभव रहा है आपके बीच, फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्चुअल एक्शन? और लोगों ने किस तरह से एक्सेप्ट किया, नहीं किया, या क्या रिएक्शन रहा है समाज का इसके प्रति? या सबसे पहले हम लोग अवेयरनेस स्टार्ट करते हैं स्कूल से, बच्चों से। एक्चुअली जब बच्चे अवेयर हो जाएंगे दे कैन टीच देयर पेरेंट्स। सो जब हम लोग बच्चों को सिखाने जाते हैं ना, तो उन लोग को एक्चुअली पता नहीं होते कि इंडियन ब्रीड्स होता क्या है। सबसे पहले हम लोग उन्हीं को एजुकेट करते हैं स्कूल्स में जाके। तो काफी सारे स्कूल्स में भी किया है, तो टाइम मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट वी हैव वॉलंटियर्स, सो वी जस्ट लाइक
कुछ वॉलेंटियर्स अवेयरनेस के काम पे, तो कुछ वॉलेंटियर्स रेस्क्यू के काम पे, ऐसे करके हम लोग जाते हैं। तो लाइक जैसे रेस्क्यू के काम पे पहले क्या होता था, मुझे जाना पड़ता था फर्स्ट स्टार्टिंग में, क्योंकि जब रेस्क्यू किसी ने किया नहीं था तो कोई भी किसी को कुछ एक्सपीरियंस नहीं था। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया विथ माय वॉलेंटियर्स। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मुझे ऑफिस भी जाना होता था, मुझे ऑफिस एनी हाउ 10 बजे को स्टार्ट करना ही पड़ता था। तो कुछ दिन लेट हुआ था, बट ऐसा था कि हॉस्पिटल ड्यूटी है तो मैं भी हमेशा लेट नहीं हो सकती थी। तो उस वजह से धीरे धीरे हम लोग के यहाँ पे मतलब हम लोग को लगा कि वी कांट डू इट ऑल एवरी डे। तो हमने तब स्टाफ्स रखना स्टार्ट किया। लाइक वॉलेंटियर्स तो है, बट हमें स्टाफ की भी जरूरत थी। तो जिस वजह से हमने उनको पे बेसिस पे रखा स्टाफ्स। लाइक कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स है जो मतलब फॉर द पॉकेट मनी दे वांट टू डू, सो हमने उनको रखा। तो उससे क्या होता था कि मैं उन जब वो लोग पहले डे पे आते थे, उन लोगों को भी नहीं पता कि रेस्क्यू कैसे करते हैं, उनको भी डर था कि कहीं डॉग काट ना दे। तो पहला जो ट्रेनिंग था वो मैं खुद देती थी। लाइक फर्स्ट डे पे आओ, मैं दिखाती हूँ कहाँ पे ओपीडी कहाँ पे है, कहाँ पे फार्मेसी है। तो जब उन लोगों को पूरा फुल ट्रेंड हो जाता था, तब आई कैन से दैट या मेरे मेरे मैं अगर नहीं भी गई दे कैन डू इट। तो अभी ऐसा है कि मैं जस्ट फोन कर देती हूँ उनको कि ऐसा ऐसा है यहाँ पे, ऐसा केस है, जस्ट गो एंड लाइक इफ इट्स अगर उसको मेडिसिन डॉक्टर चाहिए, सर्जन डॉक्टर चाहिए, जो भी डॉक्टर चाहिए, तो अभी तो वो लोग खुद ही इतने एक्सपर्ट हो गए कि उन लोग को मुझे भी फोन नहीं करना पड़ता, वो लोग खुद ही कर लेते। बाद में जस्ट मुझे अपडेट दे देते कि ऐसा ऐसा था, हो गया काम, तो अभी हम लोग घर आ रहे हैं। ऐसा है। तो अभी स्टाफ धीरे धीरे मतलब स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप हम लोग को पता चला कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे वो करना है। तो अभी नाउ लाइक वी आर गोइंग स्मूथली विद एवरी केस। चांदनी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर? चांदनी, आप लोग इनिशियली अवेयरनेस में थे, फिर आप लोगों ने जंप किया एक्चुअल रेस्क्यू में, एक्शन में। इन दोनों के बीच जो फासला है कैसे तय किया आपने? क्या अनुभव रहा? दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ अवेयरनेस करने में और एक्चुअल रेस्क्यू करने में? जी अवेयरनेस बेसिकली हम लोगों ने इतना अवेयरनेस के ऊपर हम लोगों ने इतना काम नहीं किया है। हम लोग बेसिकली हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही रेस्क्यू से ही हम लोग का ये द बॉयज शुरू हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, अवेयरनेस का अगर बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी अगर रेस्क्यू करने जाते हैं, अगर हम लोग देख रहे हैं कि ऑपोजिट जो आदमी है, जो इन्फॉर्मर है या फिर वहां के नेबर के जो लोग हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि दे आर क्वाइट फ्रेंडली, या फिर कहीं होता है कि सुनना ही नहीं चाहते हैं बात, पीपल आर लाइक उठा के लेके जाओ, हम लोग का ये नहीं है, जो करना है यू गाइस डू इट, ये बस एकदम नहीं तो मर जाएगा ये, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे वी ट्राई टू मेक देम अवेयर कि देखिए ये भी एक जान है, इनका भी एक लाइफ है, ऐसा ऐसा है, मतलब ठीक है। लेकिन अगर वो लोग नहीं समझ पाते हैं तो वहां से हम लोग तो उठा के लेके चले आते हैं। फिर हम अपने मेंबर्स के बीच ही रखते हैं कहीं पे। मेरा हॉस्टल है, मेरे हॉस्टल की जो वार्डन है, ही इज वेरी सपोर्टिव इन दिस। तो वो मेरे को परमिशन करता है कि ठीक है तुम रख सकती हो यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे एक केज है, मैं वहीं पे रख के ट्रीटमेंट करना शुरू करती हूँ। और मेरे जो मेंबर्स, हम लोग के जो मेंबर्स है, वो लोग आते हैं टाइम टू टाइम, वो लोग आके यहाँ पे उन लोग फर्स्ट एड करने के लिए देखते हैं, ये वो करते हैं, वैसा है। और कहीं पे अगर क्या होता है कि हम लोग जाते हैं तो वो लोग खुद अपने आप से हम लोग को बोलते हैं कि ठीक है आप लोग ट्रीटमेंट कीजिए उसका, यहाँ पे हम लोग उसको शेल्टर दे रहे हैं, यू कैन गिव द डॉग या फिर जो भी एनिमल है। तो वैसे टाइम पे हम लोग उन लोग को और जागरूक करने का कोशिश करते हैं। हम लोग ये चीज जो अवेयरनेस और रेस्क्यू का जो चीज है, वो लोग हम लोग साथ साथ नहीं करते हैं। तो ऐसे ही होता है हम लोग का बेसिकली, कि रेस्क्यू हम लोग अगर करने गए हैं, उन लोग को अगर मालूम नहीं है मेडिकेशन वगैरह क्या देना है क्या नहीं देना है, हम लोग उनको समझाते हैं कैसे फर्स्ट एड करना है उसको। हम लोग वैसे ही करके उन लोग को एडुकेट करते हैं, इस चीज को अवेयर करते हैं, वैसे ही वो लोग समझते हैं, वो लोग वैसे करते हैं। कुछ होता है तो दे कॉल अस कि ये हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, कैन यू काइंडली हेल्प अस। तो हम लोग जाते हैं, हम लोग जाके वैसे ही मदद करते हैं। हम लोग का ये जो रेस्क्यू और अवेयरनेस वाला पार्ट है वो साथ साथ में ही चल आ रहा है बेसिकली। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग कॉलेजेस टू कॉलेजेस, स्कूल टू स्कूल जाके रेस्क्यू सॉरी अवेयरनेस दे रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। बट या वी आर वर्किंग इन द फील्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। सो मोस्टली ऑन द स्पॉट आप लोग अवेयरनेस करने में बिलीव रहते हैं? जी, हम लोग उसी जगह पे ही हम लोग कोशिश करते हैं कि एक साथ कर ले। चांदनी, आपसे एक संस्थागत सवाल है। द जी अनसिविलाइज्ड इंडियन, जी क्या क्या इंटेंट था इसका ऐसा नाम रखने का?
बड़ा यूनिक सा नाम है। बेसिक हाँ, सो इट इज अबाउट दैट। बेसिकली ये जो चीज है अनसिविलाइज्ड इंडिया सिविलाइज्ड का, आपका ये जो सिविलाइज्ड का जो मतलब है वो एक पॉजिटिव वे में लाता है सोसाइटी को, कि हम लोग की सोसाइटी जागरूक हो रही है। तो हम लोग की कोशिश एक्चुअली यही है थ्रू अनसिविलाइज्ड इंडिया कि हम लोग उस चीज को जागरूक करने का कोशिश करते हैं सोसाइटी को। इसीलिए बेसिकली उस चीज को ही निगेटिव वे में लेके द अनसिविलाइज्ड इंडियन है एक्चुअली, बट इट इज आवर मोटिव कि हम लोग अनसिविलाइज्ड चीज से सोसाइटी को सिविलाइज्ड वे में लेके जाए। तो आप मानती है कि हम लोग अभी अनसिविलाइज्ड है, इनह्यूमन है? जी नहीं नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है कि ये नहीं है, on the बिल्कुल भी नहीं। on the lighter note, on the lighter note. या अंडरस्टैंड, वैसा कुछ नहीं है। मतलब होता है, ये एक्चुअली एक कोटेड ये टर्म है जो ऐसे शुरू हुआ है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज को लेके जाने के लिए, इसीलिए uncivilized Indian है। आपको क्या लगता है कि हमें क्या करने की जरूरत है? बहुत सारे दर्शक हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है भाई, वहां पे कुत्ता है, वहां पे घोड़ा है, वहां पे एक बिल्ली है। एक इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? अधिकतर क्वेश्चन जो हमारे ऑडियंसेस के होते हैं या वॉलंटियर्स के होते हैं या कॉलेजेस में होते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या क्या हमें आप एक स्टेप वाइज प्रोसेस बता सकती है कि मैंने देखा कि एक कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया या बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया हुआ या वो बहुत बुरी स्थिति में है। कई बार हमने देखा है कि कुत्ते की माँ मर गई और उसके 4 पप्स सड़क के किनारे पड़े हुए और इधर उधर दौड़ रहे हैं, उनके बचने के चांसेस कम होते हैं। उसी तरह बिल्ली का हमने देखा है कई जगह। क्या आप हमें एक स्टेप वाइज प्रोसेस बता सकती हैं जिससे हमारे ऑडियंस ये समझ पाए कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या करना चाहिए? अंकिता, would you like to say? Yeah, you can continue. You say. ओके, सो जो अबंडेंट वाला, मैं इस चीज पे बात करते हैं। एक इंसिडेंट है एक्चुअली इस चीज को लेके, वेरी फ्रेश है वो चीज। जिस लाइक पपीज, रिसेंटली हम लोग का मीटिंग पीरियड खत्म हुआ, बहुत सारे पपीज वगैरह हुए, तो उस चीज को लेके मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। रिसेंटली क्या हुआ था हम लोग का, आपका दिसंबर का टाइम था। उस टाइम पे एक शू बॉक्स में, जो होता है ना शू बॉक्स में, 2 डॉग्स को, एक शू बॉक्स में 2 पपीज थे जिनका एक्चुअली आंख भी नहीं फूटा था। उनको कोई फेंक के चला गया था एक गली के अंदर, वो शू बॉक्सेस में 2 पपीज को डाल के वो फेंक के चला गया था। उसकी मम्मी मर गई हो गया, नो क्या हुआ था, बट दे वर अबंडेंट। तो उसके बाद फोन आया हम लोग को लोकेलिटी से कि ऐसा 2 बच्चा है, चिल्ला रहा है सुबह से, आप लोग आके देखिए। हम लोग गए, जाके देखा कि वो जो 2 डॉग्स थे, आग भी नहीं फूटा, उन लोग का हालत काफी खराब थी। हम लोग को एक्चुअली लगा भी नहीं था कि वो बच पाएगा, क्योंकि इतना छोटा बच्चा को विदाउट मतलब मदर उसको बचाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो हम लोगों ने उस टाइम पे क्या किया, हम लोगों ने स्टेप मदर ढूंढने का कोशिश किया। कहीं पे ऐसा मम्मी है जिसका रिसेंटली बच्चा हुआ है, तो मदर मिल्क बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है एनिमल्स के लिए इनिशियल स्टेज में। हम लोग गए, हम लोग को एक्चुअली एक आंटी मिली, उनके घर के पास में एक माँ थी जिसका ऑलरेडी 4 या 5 उसका बेबी था। वो बच्चे बड़े हो गए थे, उन लोग को एडॉप्ट करवा दिया था उन्होंने। उसके बाद हम लोगों ने जैसे तैसे उसको वहां पे रखा। पहले तो उस मतलब जो डॉग थी, स्टेप मदर थी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उसने। फिर धीरे धीरे कोशिश करने के बाद लाइक इट टुक अराउंड 2 आवर्स उसको एक्सेप्ट करवाने में। उसने उसको स्मेल किया थोड़ा टाइम, एग्रेसिव भी थी, somehow we managed, like it approximately took 2 आवर्स। उसके बाद उसने वो एक्सेप्ट किया। फिर हम लोग रोज जाते थे, वो मम्मी अपने से आके दूध नहीं देती थी बच्चे को, तो हम लोग क्या करते थे, उसको पकड़ के बिठाते थे, मम्मी को बिस्किट्स वगैरह खिलाते थे, फिर बच्चे को लेके जाते थे। तो टाइम टू टाइम हम लोग को डेली 4-5 बार अराउंड जाना पड़ता था। हम लोग के वॉलंटियर्स मेंबर जाते थे, बच्चों को ले चले जाके वहां पे रखता था, वो दूध देती थी, उसको पिला पिला के देन समहाउ वी कुड सेव। हम लोगों ने उसको बचाया, दोनों बच्चों को बचाया, फिर वो लोग बड़े हुए। फिर उसके बाद हम लोग का रिसेंटली दिसंबर में ट्रमेंडस। अडॉप्शन कैंप गया 25 दिसंबर को। तो हम लोगों ने उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट करवाया। नाउ दे आर हैप्पी एंड हेल्दी। उन लोग को अभी जो उन लोग का फैमिली भी है अपना, दे आर टेकिंग केयर ऑफ बोथ द पपीज। तो वैसे है, हम लोग वो करने का कोशिश करते हैं। सो मैंने ये इंसिडेंट इसलिए बोला क्योंकि अगर मतलब टू द व्यूअर्स, अगर आप लोग को कभी भी ऐसा होता है कि बेसिकली ऐसे बच्चे मिलते हैं कि उन लोग का लाइक आइज भी नहीं हुआ है, अभी तक आंख नहीं फूटा है, ऐसा कुछ, तो काइंडली ट्राई टू गेट अ मदर, स्टेप मदर। थोड़ा दिक्कत होता है उस चीज को, लेकिन वो जान बच जाते हैं।
तो दैट इज द थिंग। क्या ये एक स्टैंडर्ड मैनुअल है कि अगर किसी की मम्मी का डेथ हो गया हो तो आप स्टेप मदर ढूंढते हैं, या आपका एक इनोवेटिव आइडिया था कि ऐसा कर सकते हैं तो क्या पता इन बच्चों की जान बच जाए? नहीं, बेसिकली ये चीज एक्चुअली हम लोग के साथ एक बार ऐसा केस हुआ था जहाँ पे हम लोग को एक्चुअली ये चीज पता नहीं था कि स्टेप मदर ढूंढने से या फिर स्टेप मतलब पहले तो हम लोग को ये चीज पता नहीं था कि माँ एक्सेप्ट करेगी या नहीं बच्चे को। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना डॉग्स की, अगर अलग कुत्ता भी देख लिया अलग बच्चा देख लिया तो वो लोग भौंकना चालू कर देते हैं, काट देते एग्जैक्टली, हैं, वैसा होता है। तो एग्जैक्टली। ये एक डर था। बट द थिंग इज दैट हम लोग की मेंबर्स ने ही हम लोगों ने डिस्कस किया आपस में कि इसको क्या कर सकते हैं। तो देन वी सेड दैट लेट्स गिव अ ट्राई कि देखते हैं क्या होता है। तो वैसा एक था कि हाँ चलो हम लोगों ने कोशिश किया, फिर पता चल गया, थोड़ा इंटरनेट वगैरह भी हम लोगों ने सर्च किया। तो दैट पे हम लोगों ने कोशिश किया, तो बाय गॉड ग्रेस उन्होंने माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था उन बच्चों को। लेकिन ये चीज हमेशा नहीं होता कि एक्सेप्ट करेगी ही या फिर, तो इसके लिए आपको रुकना जरूरी है, पेशेंस लेवल चाहिए कि आपको देखना है कि वो माँ कैसी है। क्योंकि एक्चुअली ये चीज मैंने बताया नहीं था कि उस मम्मी को, जिस मम्मी ने एक्सेप्ट किया था स्टेप मदर ने, उससे पहले उसको हम लोगों ने और एक मतलब मदर के पास लेके गए थे, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। उसको हम लोग रिटर्न लेके फिर अभी उसके पास लेके आए थे, तब जाके एक्सेप्ट किया था। सो हम ये हमेशा नहीं होता कि एक्सेप्ट कर ही लेगा या फिर छोड़ दिया वो एक्सेप्ट कर लेगा, वैसा कुछ नहीं होता है। आपको रुकना पड़ेगा, आपको उस चीज को देखना पड़ेगा कि उस डॉग का नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है टुवर्ड अदर डॉग्स, फ्रेंडली है या नहीं। तो वो सब चीजें होती है, तो पेशेंस लेवल होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। तो वैसे करके करना पड़ता है। अंकिता, आपका अनुभव। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? अंकिता, हमारा क्वेश्चन ये था कि जब आप रेस्क्यू करते हो तो ऑडियंस जानना चाहता है कि क्या स्टेप्स होते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमने किसी बिल्ली के बच्चे को देखा या कुत्ते के बच्चे को देखा, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। चांदनी ने 2 इंसिडेंट्स बताए जिसमें उन्होंने स्टेप मदर को कैसे ढूंढा और कैसे पैशनेटली उसको हेल्प किया कि अडॉप्ट करें। आपके आपके नजरों में, आपके अनुभव में ऐसा क्या है? या जैसे मैंने बोला कि हम लोग मेनली काम करते हैं अवेयरनेस पे। तो लाइक जैसे हमने काफी सारे स्कूल्स में किया था ना, तो मेरे लोकेलिटी में जो स्कूल्स है हमने वहाँ भी किया। तो लाइक वहाँ के जो स्टूडेंट्स है उन लोग को पहले हमने एजुकेट किया। तो मेरे नेबर्स में भी काफी सारे बच्चे हैं जो उन सब स्कूल्स में हैं। तो वो लोग जैसे कभी भी कुछ देखते हैं ना कि ऐसा कोई डॉग को कुछ हुआ है या फिर ऐसा कुछ, तो वो लोग अभी फुल रेडी रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमने उनको पहले ही बता दिया कि अगर किसी डॉग को तुम देखते हो कि भीग गया है या बारिश में किसी ने ड्रेन पे फेंक दिया, तो उसको उठाओ, उसको पहले उसको वार्म करो, फिर उसको वो अगर डिस्ट्रेस है तो उसको काम करो। तो ऐसे क्या है कि हम लोग अवेयरनेस के थ्रू हमने काफी कुछ मैनेज किया है ताकि इन्फॉर्मर्स जो है खुद ही रेस्क्यू कर ले। पहले क्या होता था कि अभी भी होता है कि हमें जब भी इन्फॉर्मर का कॉल आता है तो ऐसा होता है कि हमने इन्फॉर्म कर दिया, आप आओ इसको लेके चले जाओ। तो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटो ये है कि इन्फॉर्मर क्यों ना इन्फॉर्मर को ही रेस्क्यूयर बना दे। तो उसी उसी पे काम करके जैसे हमने मैं एक्चुअली उस इवेंट पे मैं नहीं थी, जो डॉक्टर प्रेरणा गोगोई है वो थी। वो जब एक इवेंट पे गए थे, वहां पे काफी सारे बच्चे थे ऑडिटोरियम में, उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था। एक्चुअली ये इंसिडेंट उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि अ, हमारा नेशनल फ्लावर क्या है। तो सबने आंसर दिया लोटस। नेशनल फ्रूट मैंगो, नेशनल एनिमल टाइगर, सब लोग चिल्ला चिल्ला के आंसर दे रहे थे। फिर जब मैम ने क्वेश्चन पूछा नेशनल डॉग कौन सा है, तो सब चुप हो गए थे। फिर मैम ने बोला इट्स द इंडियन पराया, जो हमारा लोकल ब्रीड है, आप लोग को पता है। तो वो लोग सब लोग शॉक हो गए थे। फिर उन लोग को मतलब और उसके बारे में जानने के लिए मन हुआ। तो मैम ने वो इवेंट काफी अच्छे से कंप्लीट किया। फिर जब हम मैम नेक्स्ट इवेंट पे गई थी सेम स्कूल पे, तो लाइक सब लोग एकदम फुल प्रिपेयर्ड थे कि आज क्या होने वाला है। तो सबने आके अपना अपना इंसिडेंट बताया कि हमने कैट रेस्क्यू किया, कल मेरे छत पे ऐसा ऐसा हुआ, मैंने और पापा ने मिलकर उसको ऐसा ऐसा किया। तो उस इवेंट से क्या हुआ ना, हम लोग इन्फॉर्मर्स को ही रेस्क्यूअर बना देते थे। तो ऐसा था। तो अभी भी जैसे कि
चांदनी ने कहा कि हम लोग जब रेस्क्यू करने जाते हैं उसी वक्त उन लोगों को अवॉइड करते हैं, वो भी होता है। लाइक जैसे मेरे पास कॉल आता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं उन लोग को बोलती हूँ एक काम करो, आप उस डॉग को लाके इस जगह पे रखो, उसको ऐसा फीडिंग दो, उसको ये करो, तो वो लोग वैसा वैसा करते हैं, तो वो लोग अवॉइड हो जाते हैं उसी चीज से। फिर जब नेक्स्ट टाइम सेम इन्फॉर्मर का कॉल आता है, तो तब वो लोग इस तरीके से कॉल करते हैं कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने उसको इस तरीके से रखा है, कल से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो ऐसा होता है कि मेरे पास कॉल आने तक ऑलरेडी वो डॉग रेस्क्यू हो चुका है, मुझे बस इन्फॉर्म आया है कि हम लोगों को उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। एक्चुअली जो इन्फॉर्मर्स होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स आर मेनली अवेयर देन द एडल्ट्स ना। सो ऐसा अब आजकल क्या हो गया है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मर्स ऐसे हैं जो पहले ही रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर मुझे इन्फॉर्म करके बोलते हैं कि दीदी मैंने ये रेस्क्यू कर लिया, अब क्या करना है। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, तुम आज रात के लिए उनको उसको तुम्हारे पास रखो, उसको खाना दो, फिर कल आके मेरे स्टाफ उसको लेके वेटेनरी चले जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, काफी काफी अवेयरनेस की वजह से कि इन्फॉर्मर ही रेस्क्यूअर बन जाता है। तो वो बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली एक्चुअली जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग रेस्क्यू करने के बारे में ही सोच रहे थे। एक्चुअली तब मैं तो ज्वाइन ही नहीं हुई थी, जैसे कि मुझे मेरे फाउंडर ने शेयर किया। उन्होंने ये कहा था कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे अपना, तो तब उनको किसी ने एडवाइस किया था कि ऑर्गेनाइजेशंस तो काफी है, काफी रेस्क्यू टीम है हमारे यहाँ पे, लेकिन अवॉइड करने के लिए कोई नहीं है, मेनली वो चाहिए हमें। तब मैम ने क्या किया कि ठीक है हम लोग अवेयरनेस का काम करेंगे, जो कि आसाम में ही नहीं है कहीं पे भी। तो फिर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, फिर अभी तो रेस्क्यू भी स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से, जैसे मेरे नेबर के बारे में बताती हूँ, तो अभी जैसे कहीं पे भी कुछ होता है, कल भी जैसे एक आंटी ने मुझे देखा, फिर कहा कि अंकिता पता है हम लोग के यहाँ पे जो एक फीमेल डॉग है उसका ऐसा ऐसा हुआ है, क्या करूँ। मैंने बोला उसका उसका एक्चुअली यूरिन के जगह पे ट्यूमर जैसा हो गया। मैंने उनको कहा कि ये इट्स लाइक कैंसर हुआ है, तो शायद वो टीबीटी है, उसको दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि उसका तो पहले भी हुआ था, लेकिन उसको तो केमो दिया था, फिर से क्यों हुआ। मैंने कहा कि एक्चुअली उसका यूटेरस हम लोग को निकालना पड़ेगा, तभी जाके वो बंद होगा, नहीं तो वो फिर से होगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये जब पहले केमो दिया था तब क्यों नहीं किया। मैंने कहा कि तब मेरे पास फंड्स कम थे, इसलिए मैंने नहीं किया। तो कल जैसे उस आंटी ने फिर से कहा कि एक काम करो, केमो तुम फिर से दे दो, ऑपरेशन का खर्चा मैं दे दूंगी। तो लाइक वो लोग खुद आगे आना चाहते हैं कि इस डॉग को बचा लो। वो डॉग उसके घर का भी नहीं है, वो रास्ते का है। फिर भी लाइक लोग अभी मेरे यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि मैं रेस्क्यू करती हूँ, उन लोगों को तो लगता है कि मैं ही डॉक्टर हूँ। मेरे घर पे डॉग्स लेके आ जाते हैं कि इसको कुछ कर दो, इसका पेट फूल गया है, इसका ये हो गया। मैं तो इनिशियल पे मैं कर देती हूँ, फिर मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि कल आप लोग किसी भी तरह डॉक्टर के पास ले जाओ। तो उन लोग जाते भी है। जबकि वो मेरे एरिया पे काफी जो भी लोग हैं बहुत पुअर है, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया है कि ना, हम लोग जो अवेयरनेस इवेंट्स किए थे, वो लोग अभी इतने अवेयर हो गए कि भले ही उनके पास पैसे कम हो, लेकिन वो लोग डॉग का ट्रीटमेंट जरूर करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते। जैसे कि मुझे तो कैट्स का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उस दिन पिछले महीने का ही बात है, दो लड़के एक छोटे से कैट को उठा के मेरे पास लेके आए। तो अभी उसका क्या करना है। लेकिन पहले कुछ साल पहले ऐसा था कि वही बच्चे मुड़ के भी नहीं देखते थे उन एनिमल्स को, उन लोगों को पता ही नहीं था कि उसको करना क्या है। तो लाइक उनके स्कूल्स पे या फिर इसी, जैसे कि वो बच्चे मेरे ही स्टूडेंट है, मैं उनको आर्ट सिखाती हूँ, तो मैं उनको बताती हूँ कि ऐसा ऐसा करना है। अगर किसी डॉग को स्किन प्रॉब्लम है तो उसको नारियल का तेल लगा दो तुम्हारे, क्योंकि उनके पास तो ऑब्वियसली जीरो किट वगैरह तो होगा नहीं। मैं उनको बोलती हूँ नारियल का तेल लगा दो, उस पर हल्दी लगाओ। तो कुछ कुछ बेसिक्स चीज जो है मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। और उन लोग का भी खूब मन होता है कि पूछने के लिए कि दीदी ऐसा ऐसा है, क्या करना है। तो अभी जैसे पहले वो लोग मुड़ के भी नहीं देखते थे कि क्या हुआ है एनिमल्स को, वो अभी खुद उन एनिमल्स को उठा के मेरे घर पे लाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन है अभी ड्यू टू दिस अवेयरनेस। कितना बड़ा फोर्स है अब आपका, आपने हर इन्फॉर्मर को एक तरह से रेस्क्यू फोर्स बना दिया है। कितना बड़ा फोर्स है आपका अभी। अभी काफी सारे फोर्सेस है। लाइक
गुवाहाटी में मालीगांव में एक लड़की है, शी इज अनीशा, वो भी स्टूडेंट है। तो वो तो मुझे फोन करके पूछते हैं, दीदी इस डॉग का ऐसा हुआ है, क्या करूं? मैं बोलती हूँ उसको 0 किट लगाओ, ऐसा ऐसा लगाओ। तो वो करके फिर कुछ दिन बाद कॉल आता है, दीदी डॉग ठीक हो गया। तो लाइक मुझे जाना भी नहीं पड़ा उसके पास, ऑलरेडी एक डॉग मालीगांव में ठीक हो गया। तो ऐसे उस दिन भी एक केस, उसी ने फोन किया कि इस डॉग का टीबीटी है, कैंसर, उसको पहले पता नहीं था वो क्या है। मैंने उसको समझाया कि ये है, तुम ऐसा करो। तो उसने उसको लाग जाके पास के क्लिनिक पे वो किया, क्योंकि पहले जब भी कुछ रेस्क्यू केसेस आता है ना, लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि मनी कहाँ से लाएंगे, इस पे कितना खर्चा होगा। तो सबसे पहले मैं उसको समझाती हूँ कि ये बीमारी है उसको, तो तुम ये करो, खर्चा इतना ही आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, तुम पहले स्टार्ट करो, अगर कुछ मेजर होता है तब मुझे बोलना, वी विल हेल्प यू थ्रू आवर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा होता है। तो क्या होता है कि वो लड़की खुद ही उसको रेस्क्यू कर लेती है। फिर अलग से मेघालय साइड में भी मेरी एक इन्फॉर्मर है, तो वो भी रेस्क्यू वगैरह करती है। पहले वो इतना एक्सपीरियंस नहीं थी, फिर धीरे धीरे मेरे साथ कांटेक्ट में आके फिर अभी वो भी करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा है कि काफी सारे इन्फॉर्मर्स है। तो पहले तो इन्फॉर्मर्स, मैक्सिमम इन्फॉर्मर्स ऐसे है जो कि फोन किया, काम खत्म, जो करना है करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं इन्फॉर्मर्स को इन्वॉल्व करते हैं उस केस में, कि ठीक है, ये कुछ केसेस है जो कि इन्फॉर्मर खुद नहीं कर सकते तो हम लोग लाते हैं, लेकिन फंड्स तो चाहिए, तो हम लोग उनको इन्वॉल्व करते हैं कि आप भी अपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करो, उनसे हेल्प मांगो, ताकि सब लोग उस एवर एवर होके उसके लिए फंड्स दे, ताकि वो डॉग्स इजीली सेव हो जाए। तो इससे क्या होता है कि हम लोग इन्फॉर्मर को भी दूसरों को अवॉइड करने के लिए अवेयरनेस करते हैं कि आप लोग अपने कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके लाओ। तो लाइक बेलतौला में भी है, वहां पे भी एक कपल है, वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो उनके वहां पे भी ऐसा था, तो उनके सामने एक शिव मंदिर है, वहां पे एक कुत्ता था। तो जैसे उन्होंने भी उसको रेस्क्यू करके वहां पे रखा। तो ऐसा था कि हम लोग को अभी इस इन चीजों की वजह से, अवेयरनेस की वजह से अभी ऐसा हो गया है कि हम लोग को पर्सनली जाना नहीं पड़ता है, वो लोग खुद रेस्क्यू कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग को अपडेट्स देते हैं। तो अवेयरनेस इवेंट्स के वजह से ये बहुत बड़ा हेल्प हुआ हमारा। नहीं, बड़ा इनोवेटिव तरीका रहा है कि आपने इन्फॉर्मर्स को ही रेस्क्यूअर बना दिया। क्या एक आइडिया दे सकती है क्या नंबर होगा इनका? 20, 30, 50, 100? क्योंकि आप इतना मेघालय नहीं मेंशन कर रहे हैं, फिर भी इतना नहीं है, लाइक मिनिमम 10 ऑल ओवर गुवाहाटी। आई हैव सच 10 इन्फॉर्मर्स जो मुझे काफी हेल्प करते हैं। ऐसा है कि वो लोग तो मुझे मतलब अभी उन लोग इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो गए ना, मुझे बोलते कि दीदी अब जब भी रेस्क्यू करोगे ना, आपके पास अगर कोई स्टाफ नहीं होगा मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। ऐसा होता है। नहीं, कितने कितने सारे शहरों में मैं जानता हूँ, बहुत सारे शहर जहाँ पे एक लोग नहीं मिलते रेस्क्यू करने के लिए। अभी हाल ही में अनाजोरी की टीम ने नौगांव में और तिनसुकिया में रेस्क्यू करना था, तो हम लोगों ने फोन से कांटेक्ट किया, कुछ नहीं मिल रहा था। फिर जैसे हम्म। तैसे उसको मैनेज किया गया। इनफैक्ट यहाँ से एक व्यक्ति अपनी गाड़ी लेके गया नौगांव, और वहां से उस डॉग को उसने रेस्क्यू किया। तो 10 एक छोटा सा नंबर नहीं है, इसका मतलब आप 10 अच्छे खासे एरिया को आपने कवर किया। हाँ, काफी सारे एरिया, क्योंकि ऑल ओवर गुवाहाटी से हम लोग को कॉल आता है, तो हम लोग सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि उस इन्फॉर्मर को बस जाने ना दे, उसको पकड़ के रखना है। अगर उसको पकड़ के रखेंगे तभी वो आगे दूसरों को पकड़ के रखेगा। तो मेन मोटिव वही है कि इन्फॉर्मर को पहले पकड़ के रखो, उसको भी रेस्क्यूअर बनाओ, फिर ताकि वो दूसरों को रेस्क्यूअर बना सके। तो इससे पूरा गुवाहाटी हेल्थ पीआरसीएफ बन जाए। चांदनी, आपका अनुभव कैसा रहा कि आप भी अंकिता वाले फॉर्मूला पे है कि इन्फॉर्मर को रेस्क्यूअर बनाया, उसकी ट्रेनिंग की, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की, और एक तरह से लाइक एक तरह का मिनी डॉक्टर हो गया उस एरिया का, छोटी मोटी इलाज भी कर लेता है। आप लोग का क्या तरीका रहा है? जी बेसिकली हम लोग भी यही करते हैं कि हम लोग अगर लाइक कोई डॉग है किसी लोकेलिटी में, जो इन्फॉर्मर बेसिकली होता है, उनको हम लोग अपने साथ ले जाने का कोशिश करते हैं वेट तक, कि आप आइए, आप देखिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, इसकी ये किस दर्द से गुजर रहा है। क्योंकि ये होता है ना कि ये हार्ट टू हार्ट भी कनेक्ट कर पाते हैं चीज,
कि अगर वो पेन देखता है कि उसको ट्रीटमेंट के टाइम पे आप म्यूट हो गई। चीज उसको हो रहा है। ऑडिबल? हाँ, यस ना। तो द थिंग इज वो कैसे इस चीज को ले रहा है, वैसे हम लोग कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं या फिर उसके तक पहुंचने का कोशिश करते हैं, उनको इन्वॉल्व करते हैं। तो रिसेंटली मेरे साथ एक ऐसा एक केस हुआ था। एक बंदर था जो एक्चुअली करंट का शॉक लग के वो गिरा था। तो एक दिन शायद वो ऐसे रात को वो गिरा, सुबह कॉल आया। हम लोग के यहाँ पे कॉटन रोड बोल के एक जगह है, तो वहां पे उसको इन्फॉर्मर ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा बात है, ये बंदर पड़ा हुआ है, इसको भी क्या करें। तो उस टाइम पे सुबह का 7 या 8 बजा होगा अप्रोक्सीमेटली, तब मतलब जस्ट सुबह हुआ। तो हम मैंने बोला उनको कि आप एक काम कीजिए, मैं हॉस्टल में थी, तो मैंने उनको बोला इफ पॉसिबल आप उसको लेके आइए, मैं जाऊंगी आप लोग के साथ डिसाइड, हम लोग उसको ये करते हैं। तो वो खुद वो इन्फॉर्मर उसको उठा के एक बैग में डाल के उसको लेके आया। वो खुद गया उसको लेके, हम लोग का मेंबर्स गया, मैं गई खुद साथ। जाने के बाद फिर हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया। उसने खुद इवन जो डीमैग वगैरह स्प्रे वगैरह होता है, उसने खुद उसको स्प्रे किया उसके वोन्स पे कि वो ठीक हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो उस मंकी का एक्चुअली इतना ही खराब उसका बर्न हुआ था इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से, क्योंकि उसका इंटरनल बर्निंग हो गया था। वो मंकी बच नहीं पाया। बट द थिंग इज वैसे हम लोग इन्वॉल्व करने का कोशिश करते हैं, एंड इवन लाइक समटाइम्स वी गो लो ऑन फंड्स, क्योंकि हम लोग का ये सेल्फ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस टाइम पे हम लोग लोकेलिटी एरिया में वो लोग खुद भी बहुत लोग आगे बढ़ के आते हैं कि आप लोग इसका ट्रीटमेंट कीजिए, इसका पैसा हम लोग देंगे, हम लोग करेंगे। तो हाँ, हम लोग वैसे भी उन लोग को इन्वॉल्व करते हैं। हम लोग घर के भी कभी देखते हैं तो वैसे करके हम लोग इन्वॉल्व करने का कोशिश करते हैं। फैंटास्टिक। जाने से पहले ऑडियंस के लिए एक मैसेज जो हम जैसे लोगों को इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके कि ये सिर्फ जानवर नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं जानवर की तरह बिहेव मत करो, लेकिन हमने हाल फिलहाल में देखा है कि जानवर जितना लॉयल होता है, जानवर जितना केयरिंग होता है, शायद वो इंसानों में नहीं है। तो जाते जाते ऑडियंस के लिए अंकिता और चांदनी, आपका मैसेज क्या होगा? मेन बात है कि ये जो अर्थ है ये सिर्फ ह्यूमन का नहीं है, ये एनिमल्स बर्ड सबके लिए है। हम सबको शेयर करके रहना है, ह्यूमंस को अकेले नहीं रहना है। तो जितना हक हमारा है उतना उनका भी है, तो उनको भी रहने दे, खुद भी रहे। जैसे कि हमारा कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो भी हमें हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग एनिमल्स है तो हमें उनसे कुछ हेल्प नहीं मिलता, ऑब्वियसली मिलता है। व्हेन आई एम टायर्ड, मैं घर पे आती हूँ तो मुझे फ्रेश करने के लिए मेरा डॉगी आता है, कोई और नहीं आता है। तो जब वो लोग प्रॉब्लम पे है हमें भी उनके लिए जाना चाहिए। So it's like sharing and caring both together. थैंक्स अंकिता। चांदनी? तो एज अंकिता सेड कि ये अर्थ सिर्फ हम लोग का नहीं है, एज यहाँ पे पेड़ पौधे एनिमल्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है। तो ये अर्थ जब भगवान ने बनाया है इन सब स्पीसीज को, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये अर्थ सबका है रहने के लिए। तो फिलहाल यही बात है कि हम सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते राइट कि सभी एनिमल फ्रेंडली होंगे। कोई होता है किसी को डर लगता है कि चलो मुझे डॉग से डर लगता है, मैं नहीं जा पाती हूँ पास। लेकिन मेरा ये एक मैसेज नहीं है, ये रिक्वेस्ट भी है, आप बोल सकते हो कि आपको डर लगता है आप कुछ मत कीजिए उसको, आप साइड से चले जाइए। या फिर अगर आप देख रहे हैं कि कोई एनिमल पेन में है, तो आपके लोकेलिटी में जो भी है जो एनिमल्स के साथ डील कर सकता है उनको कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि एनिमल पेन में है, इसका इसको थोड़ा देख ले, या जो हो बन पड़ता है कीजिए। हार्म मत कीजिए उन लोगों को। आपको डर लगता है आप साइड से गुजर जाइए, आप साइड से चले जाइए, उनको मारिए मत, पीटिए मत। एंड ऑब्वियसली एक साथ हम लोग रहेंगे, ये दुनिया सबके लिए है, एक साथ हम लोग रहेंगे तभी ये दुनिया और ज्यादा खूबसूरत बनेगी। तो यही मेरी मैसेज है कि हार्म मत कीजिए इनको, एक साथ रहिए। और या रास्ते में आते जाते गुजरते एनिमल्स को अगर देख लेना कि वो लोग मतलब खाना नहीं मिल रहा है उसको कुछ दिन से, या फिर एटलीस्ट एक बिस्किट का पैकेट ही खरीद के उनको खिला दे, गाय हो कुत्ता हो जो भी हो। तो ये चीज हम लोग करें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। एंड थोड़ा इनके प्रति अपना जो फ्रेंडली नेचर है हम लोग का ह्यूमंस का, क्योंकि बोलते हैं हम लोग सबसे एडवांस है, ह्यूमंस गॉड का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस क्रिएशन है। तो ये कैपेबिलिटी उन लोगों में शायद ना हो, लेकिन हम लोगों में है कि हम लोग उनको थोड़ा देख सके, उनका मदद कर सके। अगर वो देख रहे कि बारिश में कोई कुत्ता भीग रहा है, कोई बिल्ली भीग रहा है, कोई गाय भीग रहा है, एटलीस्ट कुछ करके उसको हम लोग अपना कंपाउंड में रख सके। ये सब चीजें थोड़ा कोशिश करें, अपने हम खुद थोड़ा हाथ बढ़ाए पहले एज वी आर ह्यूमन बींग्स, कि उन लोगों के साथ फ्रेंडली अपना नेचर अपना सके।
ये कर सके तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है। That's it. तो जैसा कहते हैं, if you can't help them, don't hurt them. Yeah. Yes, I really believe in this. I really believe in this. If you can't help them, yeah, जी, live Ankita जी, and let live. Yeah, that is live and let. That's fantastic. Rajashree, I'm turning it to you. If there is a question from your side, Geeti, you have any questions? Please come over. Any questions? Geeti Smita, Rajashree. Okay, Rajashree's audio system is not working for some reason. So I believe that they don't have any questions. So thank you so much, Ankita and Chandni. It is a pleasure having you on board, and we truly appreciate that you could say yes on such a short notice. I'm always willing to join your force. If you can teach me, I'm always there. I've recently shifted to Guwahati, and we're very happy to help you in any way. So thank you so much for being on the Anajori platform, and we look to collaborate in any manner on this enabler weapon. Thank you so much, and have a good evening.